Assalamu alaikum. I am Dr. Maria, and today we will learn how to determine the sensations carried by anterolateral pathways. So, what is the learning objective of this practical? At the end of this practical, you should know the sensations which are carried by anterolateral tract. What are the different methods to check the integrity of the anterolateral tract, and what are the effects which can be produced due to lesion of this pathway. So first of all, you need to know the different sensations which are carried by anterolateral pathway. As you already know that it carries different sensations like pain, temperature, pressure, tickle, itch and crude touch. So these are the different sensations which are carried by anterolateral pathway. So अगर हम अलग अलग से बात करें तो first of all if we discuss pain, so what is pain? It is actually an unpleasant sensation, ठीक है, which occur whenever your tissue is damaged, ठीक है. Actually it is a protective mechanism, and you know that there are two types of pain. One is fast pain and other one is slow pain. Now what is the difference between fast pain and slow pain? Fast pain is actually of sharp nature. It is of acute pricking electric type of sensation, which can be felt within 0.1 second after a painful stimulus is applied. And slow pain is actually a blunt, boring, burning, aching sensation which begins after 1 second and increases gradually over seconds. You already knew that pain receptors are free nerve endings and they adapt very little. So you must know that there is two types of pain: sharp pain, which is called fast pain, and slow pain, which is a blunt type of pain which begins after 1 second or more. The second sensation which is carried by anterolateral tract is temperature. Okay, so human beings, you already knew that they perceive different gradations of cold and heat. They can perceive the cold temperature and burning hot temperature, but we must know that cold receptors are more than warm receptors in the body. So what is actually the principle of this practical? The principle is, आपको पता है कि सबसे पहले there is a sensory receptor, and that sensory receptor carries impulse to sensory neurons, ठीक है. वो conduct होती है in the form of action potential, and that is determined at your higher cortical level. So this is actually the principle of this practical, कि all of the sensations, they have specific sensory receptors, or they have specific receptor systems or afferent pathways, and stimulation of these sensory receptors actually produce nerve impulse and sensory neurons, which is conducted in the form of an action potential and then detected later on at higher cortical levels. Okay, so this is the principle of determination of the sensations which are carried by anterolateral pathway. अच्छा, second, in these kind of practicals जिनमें आपको clinical performance देनी होती है, you need to know the protocol of the examination, ठीक है. So first of all, you need to know that you should introduce yourself to the subject and take consent of the subject, ठीक है. That is very 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 important. सबसे पहले at this level आपसे क्या expect किया जाता है? You know the different steps of examination. So protocol of this examination is to introduce yourself to the subject, ठीक है. अपने आप को introduce कराओ कि I am Dr. फला, ठीक है, and then take consent from the patient, क्या मैं आपका मुआयना कर सकता हूँ, ठीक है. So introduce yourself to the subject, take consent, then explain the procedure, what are you going to do with the patient, ठीक है. उसको पता हो already कि आप ये steps करेंगे, ठीक है. Explain the procedure to the subject. Then you should maintain the privacy of the subject. Sensations which are evaluated in this case, they are actually with subject eye closed, ठीक है. इसमें आपने आंखें बंद करवानी है जब आपने पेन, टेम्परेचर, थर्मल सेंसेशंस चेक करनी है, तो to avoid any kind of visual effects, ठीक है. So this is the protocol of the examination. अच्छा जी, अब जी examination checklist क्या है? What are you going to check in this practical is actually crude touch, pain और temperature sensations, ठीक है. सिंपल सा प्रैक्टिकल है, इसमें कुछ इतनी ख़ास बात नहीं है कि जो आपको मतलब कोई मुश्किल इस तरह की बात नहीं है जो आपने याद करनी हो. बस आपको सबसे इम्पॉर्टेंट बात जो पता होनी चाहिए, कौन कौन सी सेंसेशन आप चेक कर रहे हैं और किस तरह चेक कर रहे हैं, ठीक है. सो ऑपरेटर्स यू नीड फॉर दिस प्रैक्टिकल इज़ अ पेन एस्थीजियोमीटर, ठीक है.
एंड अ टेम्परेचर एक्सीवियोमीटर। दीज आर एक्चुअली द डिवाइसेस जो कि आपकी डिटरमिन करेंगी पेनफुल स्टिमुलस जो है वो आप अप्लाई करेंगे थ्रू पेन एक्सीवियोमीटर और टेम्परेचर एक्सीवियोमीटर के थ्रू आप डिफरेंट टेम्परेचर्स पे जब आप उसको लेके जाएंगे स्ट्रेंथ ऑफ स्टिमुलस इंक्रीज करेंगे तो यू हेल्प हिम डिटरमिन द डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेंसिटिविटी रिलेटेड टू टेम्परेचर। ठीक है, अच्छा जी। सो दीज आर टू सिंपल apparatuses you need. One is pin एक्सीवियोमीटर एंड द अदर वन इज टेम्परेचर एक्सीवियोमीटर। अच्छा, अब प्रोसीजर क्या है, व्हाट आर यू गोइंग टू डू विद द पेशेंट। ठीक है, इफ़ यू हैव टू डिटरमिन द पेन, ठीक है, आपको भी बताया कि देयर आर टू टाइप्स ऑफ पेन, फास्ट पेन एंड स्लो पेन। फॉर फास्ट पेन आप सबसे पहले क्या करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल यू शुड इंट्रोड्यूस योर सेल्फ टू द सब्जेक्ट। ठीक है, टेक कंसेंट फ्रॉम द सब्जेक्ट, देन यू विल एक्सप्लेन द प्रोसीजर। ठीक है, अच्छा, देन यू विल गिव कमांड टू द पेशेंट टू क्लोज हिज आइज। आप कहेंगे कि अपनी आंखें बंद करें। ठीक है, देन यू विल सिलेक्ट एन एरिया ऑफ द स्किन एंड टच दिस एरिया एंड द सिमिलर एरिया ऑन द ऑपोजिट साइड फॉर पेन। ठीक है, यूजिंग शार्प एंड ऑफ द पेन एक्सीवियोमीटर का आप शार्प एंड यूज़ करेंगे। ठीक है, फॉर फास्ट पेन। ठीक है, फास्ट पेन मैंने भी आपको बताया कि दिस इज़ शार्प एक्यूट इन नेचर, प्रिकिंग टाइप ऑफ पेन होती है। तो जो एक्सीवियोमीटर है उसके दो एंड्स होते हैं, वन इज़ ब्लंट एंड द अदर वन इज़ शार्प एंड। तो शार्प एंड के साथ आप उसको प्रिक करेंगे, जिस जगह पे प्रिक करेंगे ऑपोजिट साइड पे भी बिल्कुल उसी जगह पे प्रिक करेंगे। ठीक है, अच्छा जी। फिर आप उससे क्वेश्चन पूछेंगे पेन कैसी थी, शार्प थी या डल थी, कैसी आपको पेन फील हुई है। ठीक है, और बताएं कहाँ आपको पेन फील हुई है और कितनी दफ़ा पेन फील हुई है। ठीक है, देन यू विल रिपीट दिस प्रोसीजर 5 टाइम्स ऑन ईच पार्ट, देन यू विल टैबुलेट योर रिजल्ट्स। ठीक है, सिमिलरली स्लो पेन के लिए आप क्या करेंगे, आप स्क्वीज द सब्जेक्ट्स मसल्स। ठीक है, बाइसेप्स, ट्राइसेप्स, काफ मसल्स, और उसको कहेंगे कि जब आप क्या करेंगे, एक्चुअली यू विल स्क्वीज़ द मसल बेली। ठीक है, तो स्क्वीज़ करेंगे ना, उसके बाद यू विल आस्क द सब्जेक्ट कि आपने बताना है मुझे जब ये पेनफुल हो जाए। जब स्क्वीज़ करते जाएंगे, जब फिर वो कहेगा दिस इज़ पेनफुल, तो वो आप बताएंगे कि एट विच लेवल, मतलब एट विच टाइम इट इज़ पेनफुल। ठीक है, आपने उस टाइम पे हमें मुझे बताना है। सो दिस इज़ हाउ यू डिटरमिन फास्ट पेन एंड स्लो पेन। ठीक है, अच्छा जी। सेकंड चीज़, आप टेम्परेचर कैसे चेक करते हैं, उसमें भी वही प्रोटोकॉल सबसे पहले फॉलो करना है। देन यू विल आस्क द सब्जेक्ट टू क्लोज हिज आइज। अच्छा, फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल टेक कोल्ड वाटर इन द टेम्परेचर एक्सीवियोमीटर। ठीक है, और उसको टच कराएंगे ऑन फेस, फोर आर्म्स, हैंड्स, लेग्स। ठीक है, और उससे पूछेंगे विच टाइप ऑफ सेंसेशन इज़ फेल्ट। ठीक है, वेदर द वाटर इज़ कोल्ड और वार्म और हॉट। ठीक है, और कहाँ पे आपको ये महसूस हुआ है, वेयर वॉज इट फेल्ट। ठीक है, और फिर ये रिपीट करेंगे प्रोसीजर एंड देन यू विल टैबुलेट योर रिजल्ट्स। ठीक है, सिंपल सी बात है। यू विल टेक आइदर कोल्ड टेम्परेचर और cold water or hot water, and then you will ask the subject which type of sensation is felt and where was it felt, and then you will repeat the procedure and tabulate your results। अच्छा जी। फॉर क्रूड टच भी आप ऐसे ही करेंगे। यू विल आस्क द सब्जेक्ट टू क्लोज हिज आइज, देन सेलेक्ट एन एरिया, फिर ऑपोजिट साइड पे भी उसी एरिया से करेंगे। अच्छा, इन केस ऑफ क्रूड टच यू विल यूज़ द ब्लंट एंड ऑफ द पेन एक्सीवियोमीटर एंड देन यू विल आस्क द सब्जेक्ट आइडेंटिफाई करें जी कहाँ पे सेंसेशन प्रोड्यूस हुई है, मुझे बताएं। ठीक है, और हाउ मैनी टाइम दीज सेंसेशंस वर फेल्ट, और वही आप रिपीट करेंगे प्रोसीजर एंड देन यू विल टैबुलेट द रिज़ल्ट। ठीक है, सो दिस इज़ द होल प्रोसीजर। ये आपने इसमें आपसे कोई एक भी कराया जा सकता है, सारी सेंसेशंस भी चेक कराई जा सकती हैं, बट यू नीड टू नो कि कौन कौन सी जो है वो होती हैं आपकी सेंसेशन एंटेरोलैटरल पाथवे से चेक। अच्छा जी, व्हाट आर द प्रिकॉशंस इन दिस प्रैक्टिकल। सबसे पहले जी, जब आपने इस तरह का प्रैक्टिकल करना है, यू शुड कंपेयर बोथ साइड्स ऑफ द बॉडी। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल कंपेयर बोथ साइड्स ऑफ द बॉडी। अब ये नहीं कि एक साइड पे करके दूसरी साइड भूल जानी है। ठीक है, सब्जेक्ट शुड बी प्रॉपर्ली एक्सपोज्ड। ठीक है, अच्छा जी। स्टिमुलस जो आपने अप्लाई करना है उसकी स्पेसिफिक लोकेशन होनी चाहिए। सब्जेक्ट जो आपका रिलैक्सड होना चाहिए, वो ना हो डरा सहमा हुआ बैठा हो। देयर शुड बी नो इन्फ्लेमेशन ऑफ द एरिया। जो भी आपका अंडर एग्जामिनेशन एरिया, दैट शुडंट बी इन्फ्लेम्ड एरिया। ठीक है, सो दीज आर द डिफरेंट प्रिकॉशंस यू शुड टेक इन दिस काइंड ऑफ प्रैक्टिकल्स।
अच्छा जी, हमने कहा था कि लीजन हो जाए इस पाथवे की तो क्या होगा। सो लीजन ऑफ द इंटेरोलैटरल पाथवे में कौन कौन सी सेंसेशंस जाएंगी। देयर विल बी लॉस ऑफ सेंसेशंस ऑफ टेम्परेचर एंड देयर विल बी इम्पेयर्ड tactile sensations on the opposite side of the body below the level of the lesions। ठीक है, तो इस प्रैक्टिकल से रिलेटेड आपसे क्या क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं जी। आपसे पूछा जा सकता है व्हाट इज़ पेन, पेन कैसी, पेन व्हाट क्या होती है, उसकी क्लासिफिकेशन बताएं जी। व्हाट आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ पेन, व्हाट आर द डिफरेंट रिसेप्टर्स ऑफ द पेन, व्हाट इज़ द नेम ऑफ द पेन रिसेप्टर्स। ठीक है, क्या होते हैं नोसिसेप्टर्स। ठीक है, व्हाट आर द इफेक्ट्स ऑफ द लीजन्स ऑफ इंटेरोलैटरल पाथवे and which sensations are carried by anterolateral spinothalamic pathway। ठीक है, so I hope you understand the whole thing। ठीक है, और जब आप आएंगे तो एक दफ़ा आपको परफॉर्मेंस भी करके करा देंगे। अभी आप लोग इनको मतलब थ्योरेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से एक दफ़ा पढ़ लो। ठीक है, देन जब आप लोग इंशाल्लाह ताला आएंगे तो इसको हम परफॉर्म भी कर लेंगे, बट यू मस्ट नो द डिफरेंट थ्योरेटिकल पार्ट ऑफ दिस प्रैक्टिकल एग्ज़ाम। ठीक है, थैंक यू सो मच।